First class of cost control account, we have introduced the concept of recording under control system, the costing transactions. Second class, we have already discussed the remaining journal entries and few accounts. Today, we'll go for the basic fundamental problems. You can say that building block type of problem. And it is very easy for you to handle. So first question is like that. From the following information, prepare store ledger control account, wages control account, and overhead control account. I repeat, from the following information, prepare wages control account, production overhead control account, store ledger control account. Okay, so you have to prepare. Now, for that, you have to open 3 accounts. Solution. Wages control account. Production overhead control account. Okay, so as we know very well, store ledger having the opening balance of raw material, different types of raw material. If we combine, then it will get the store ledger account, no, store ledger control account. Already in a material, we have prepared the store ledger account for individual material. Now we are preparing store ledger control account, a summary of all transactions. That is opening stock of material. So it is treated as to balance. Assume कर लेते हैं. The date is 112021. 112021. Balance how much? Balance is 20,000. Okay. Now, suppose end of the month, transaction for the month, suppose 31/12/2021. Here also 31/12/2021. That is a balance. That is a all control transaction are recorded at the end of the period. End of the period, particularly for that year is 2021 is the year. So at the end of the year, suppose. तो देखिए फर्स्ट आइटम है परचेज ऑफ मटेरियल. जर्नल क्या होगा? कंट्रोल में जर्नल क्या होगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट. लेजर में भरेगा बैलेंस, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो टू CLC account, cost ledger control account. How much purchase? Sir, purchase is 1 lakh. Clear or not? Asking to everyone, is it okay or not? Yes, sir. Yes, sir. So you have purchase. So CLC account credit 1 lakh. Here I am not opening cost ledger control account. If you open the cost ledger control account, you have to credit the cost ledger control account. Say for example, for this problem, I am opening cost ledger control account. Suppose by balance 112021, by balance, suppose it is not known to me, balance brought forward. Suppose 40,000 I'm given in the problem. 31/2/21 by SLC, that is purchase. How much? 60. Next. 60 now, 1 lakh. Next,
direct material issued from store. What is the journal entry? Direct Work material in progress control account debit to stores ledger work in control account. progress control account debit to store ledger. That is by work in progress WIP account. That is issue of direct material. How much? 50,000. Now, indirect material issue 15,000. Indirect material issue 15,000. गलती से 15 लिख दिया। तो indirect material issue indirect material production में जाएगा तो क्या जर्नल होगा? सर प्रोडक्शन overhead control account debit to stores ledger control account. So by production overhead control account. Production overhead OHC overhead control account. Overhead control account. Better to write in this way. Production overhead control account. How much? Production overhead control 15,000. In the production overhead 31/12/2021 to SLC account, cost road ledger control account 15,000. Indirect material issue, ये था परचेज, ये है इनडायरेक्ट मटेरियल इशू. Next, loss of material, that is normal loss 5,000. नॉर्मल लॉस कहां पर चार्ज होगा? सर प्रोडक्शन ओवरहेड में. जर्नल क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल. यस और नो? Yes, sir. By production overhead control account, normal loss 5,000. amount আমাকে একটু বলিস তোরা কেউ. amount 5,000. then to SLC account, that is normal loss 5,000. Next, material stolen 1,000. It is abnormal in nature, it is not overhead. So by Costing and PL account. profit and loss account, how much? 1,000. Stolen. Material stolen. Next, material returned to supplier. So जब material purchase हुआ था, journal हुआ था क्या? Store ledger control account debit to CLC for purchase. Now you are returning the material of ₹3,000 to the supplier. So sir, obviously opposite entry. By CLC account, that is return to supplier. How much? 3,000. तो CLC account में 3,000 return to supplier. 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 3,000 return to suppli
that is cost ledger control account, cost control account, cost ledger control account 31 12 to 1 to SLC account 3000. Next, material return to store. Naturally, material return to store from warehouse. तो स्टोर लेजर का बैलेंस बढ़ जाएगा टू WIPC अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, रिटर्न टू स्टोर. How much? 6,000. Done. Next, total wages paid 40,000. What is the journal? Total wages paid 40,000. What is the journal? Wage control account debit to Sorry? CLC. Wage control account debit. Wages control account debit to CLC, cost ledger control account. तो wages control में 31/12/2021 because control account summary. So control entry always at the end of the period. That's why last date में. To CLC account, wages paid. Wages paid 40,000. Cost ledger में by wages control, wages control account 40,000. Now, out of 40,000, direct wages is 25,000. So direct wages is a part of work in progress. So direct wages by कितना direct wages? 25. By work in progress control account. So you are applying the wages, direct wages. How much? 25,000. Next, indirect wages 10,000 allocated by production overhead control. By production overhead control, indirect wages. How much? 10,000. 10,000. So production overhead में two wages control. आइडल टाइम वेजेस. नॉर्मल अगर आइडल टाइम कुछ नहीं बोला है, नॉर्मल आइडल टाइम है तो सर इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड. सो नॉर्मल आइडल टाइम रिलेटिंग टू अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन ओवरहेड, रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. इफ नथिंग मेंशन, अज्यूमिंग नॉर्मल एंड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सो चार्जेस टू द प्रोडक्शन 3,000. idle time. How much idle time? Idle time wages 3,000. तो प्रोडक्शन ओवरहेड में फिर से 3,000 आएगा. टू वेजेस कंट्रोल, Next, sir, there is a 2,000 that is wages paid during the strike. So it is abnormal in nature. तो abnormal है तो costing PL में जाएगा. By costing PL. Yes or no? If it is abnormal, कहाँ पर जाएगा?
costing PL, how much? 2000. If you look at the wages account, थोड़ा देखिए इसका डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड टैली हो गया है, देखिए. सो डेबिट साइड भी 40,000, क्रेडिट Yes. 40,000. नेचुरली वेजेस का कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 18,000. तो प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड फर्दर 18,000 बोल दिया है. जर्नल क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी. क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड हाउ मच? 18,000. 18,000. 3,000. सीएलसी में बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 18,000. ओके, तो प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब भी तो होना है. यस, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब 25%. डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल सकता था एब्जॉर्प्शन रेट ऑन डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकता था. बोल दिया 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो डायरेक्ट वेजेस 25,000 था, उसका 100% 25,000, वो भी बोल सकता था. तो प्रोडक्शन ओवरहेड कहां पर जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल में. सो WIPC प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ट में कहां पर था? चार्ट पिक्चर सोचो. प्रोडक्शन ओवरहेड वेजेस एंड मटेरियल कहां पर जा रहा है? वर्कशॉप में. और वर्कशॉप का अकाउंट का नाम क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. तो एवरीथिंग जहां वहां पर अगर चार्ज होगा तो वहां पर जाएगा WIPC कंट्रोल अकाउंट, दैट इज एब्सॉर्ब्ड 25,000. ओके, नाउ सर प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर रन ओवर ऑब्जर्प्शन अगर जो भी है वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा. प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल कितना है? एक बार कोई बोलेगा? प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल 51,000, sir. 51,000. 51,000 sir. 51. 51,000. एब्जॉर्ब कितना हुआ? 25. तो बाकी कहां पर गया? अनएब्जॉर्ब. तो कहां पर ट्रांसफर करने के लिए बोला है? मेरा बोल ही दिया है सर कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करने के लिए. आइदर कॉस्टिंग पीएल लिखेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, सिंस बोल दिया है. अदरवाइज ऊपर सस्पेंस अगर कुछ ना बोलते. अंडर एब्जॉर्प्शन मान के चलते हैं ड्यू टू रॉन्ग प्लानिंग. कितना? 26,000. 26,000. चलिए, तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी कंप्लीट हो गया, वेजेस भी कंट्रोल हो गया. स्टोर लेजर का देखिए तो 1,26,000. बैलेंस कितना आएगा? और वो भी मेरा किसका बैलेंस है? मेरा क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD प्लस CF. कितना? मतलब अमाउंट बोलो. 53. इसको क्या बोलोगे? सर ये है अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्लियर? if the that is the opening stock of material, not raw material, because Sir direct 52 होगा sir. sorry 52 Yeah, होगा. so maybe verbally করেছি আমি. 52 whatever. Yes sir, 52. whatever 52 okay. Okay, whatever দেখে নিও তোমরা.
So clear? So it is okay or not? From that transaction, I have to open only 3 account. That is stored ledger, wages and production overhead. Sir, cost ledger तो करने के लिए नहीं बोला था. That is for your सेवा. That is philanthropic work. मैंने आप लोगों के लिए कर दिया. बोला नहीं था. नहीं बोलेगे तो एग्जाम में सेवा करने के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. जितना बोला है उतना ही करना है. ठीक है? और ये इसलिए मैंने इसका बैलेंस भी नहीं किया. मैंने सिर्फ दिखाया कॉस्ट लेजर में इसका कैसे आता है. डन? यस सर. चलो अब आ जाते हैं. हाँ बोलो, एनी क्वेश्चन? सर वो वेज कंट्रोल के बारे में आप बोले थे कि कभी वो टैली नहीं होगा सर, तो इस बार हो गया. इसके बारे में कुछ कमेंट कर रहे थे सर. टैली नहीं होगा नहीं बोला है. वेजेस का कोई बैलेंस नहीं आ सकता. मतलब ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली नहीं आ सकता है. सर्विस का तो स्टॉक नहीं हो सकता है. वेजेस का स्टॉक नहीं हो सकता है. हाँ, काम चार्ज ओवर चार्ज हो सकता है, लेकिन वेजेस का कोई स्टॉक ऑफ वेजेस नहीं हो सकता. यस सर. हमेशा टैली हो जाएगा सर. हाँ, लॉजिकली अगर टैली नहीं भी हुआ तो हम लोगों को टैली कराना पड़ेगा. एक प्रॉब्लम होगा जहां पर आपका टोटल वेजेस पेड 1 लाख बोल दिया है, 90,000 डायरेक्ट वेजेस बोल दिया है, बाकी कुछ नहीं बोला है. मतलब बाकी 10,000 क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस. यस सर. बैलेंसिंग फिगर. हाँ, एक जगह आइडल टाइम भी बोल दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस भी बोल दिया है, डायरेक्ट वेजेस भी बोल दिया है, तब भी टैली नहीं कर रहा है. अब नॉर्मल आइडियल टाइम. कॉस्टिंग पीएल टैली कराना पड़ेगा आपको. ठीक है? ओके सर. ओके. अच्छा, कभी कभी होता है मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बोल देता है, इन बिटवीन कोनो एक इंफॉर्मेशन मिसिंग रहता है. हो सकता है नॉर्मल लॉस, हो सकता है इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. आप देख लीजिएगा सिचुएशन वाइज. क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट, finished goods control account, cost of sales account, the control account, administrative overhead account, selling and distribution overhead account. तो चलिए 1 2 3 4 करते हैं. 1 2 3 4 5. चलिए एक एक तरीके से. हाँ, तीन 4 5. फर्स्ट अकाउंट का नाम होगा वर्क इन प्रोग्रेस. दूसरा फिनिश गुड्स. नेक्स्ट cost of sales. Then administration overhead. Selling and distribution overhead. ओके. चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मान के चलते 1121. 2 बैलेंस. ब्रॉट फॉरवर्ड. बोलिए तो क्या है वर्किंग प्रोग्रेस का? सर व्हाट इज वर्किंग प्रोग्रेस का? 30,000 का मतलब क्या है सर? गुड्स लास्ट ईयर में शुरू तो हुआ है काम, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है. मतलब सेमी फिनिश गुड्स. लास्ट ईयर में उस गुड्स के ऊपर कुछ खर्चा हुआ है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है. आप लोगों को शायद याद है, मैंने एक डेफिनेशन सिखाया था आप लोगों को वर्किंग प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का. फिनिश गुड्स का मतलब है, बार बार बोल रहा हूं, ये बार बार लगेगा आप लोगों को, अगर मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड तीनों का कंपोनेंट ही 100% इस्तेमाल हो चुका है तो उसको बोला जाएगा वो फिनिश गुड्स.
अगर तीनों में 100% के जगह लेस देन 100% है तो वो हो जाएगा ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का डिफरेंस यही है, फिनिश गुड्स में लेबर, मटेरियल, ओवरहेड तीनों ही 100% अप्लाई हो जाता है, और WIP में मटेरियल तो 100% होता है लेकिन लेबर एंड ओवरहेड शायद 100% नहीं है, 50% है और 60% है। क्लियर? तो चलिए, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस 30,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 40,000। Opening stock of finished goods 40,000. Done. That is the opening stock. Issue of direct material 80,000. तो डायरेक्ट मटेरियल इश्यू होता तो है कहां पर जाएगा सर? वर्किंग प्रोग्रेस। जर्नल क्या होगा सर? वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, यस और नो? वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल में बढ़ेगा और स्टोर लेजर से घटेगा टू CLC अकाउंट। कुछ देर पहले ही आपने दिया था डायरेक्ट मटेरियल कितना? बोल बेटा। 80,000। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस का क्या नाम से आता है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट, यस और नो? दैट इज डायरेक्ट वेजेस। कितना? डायरेक्ट वेजेस 70,000। यहाँ पर सर वेजेस में अकाउंट नहीं ओपन करेंगे भाई, यहाँ पर नहीं बोला, और ऑलरेडी मैंने आपको CLC एंड वेजेस कंट्रोल दूसरा प्रॉब्लम में सिखा दिया है तो मैं फिर से नहीं करूंगा। प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आई रिपीट, प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 2 वर्क इन प्रोग्रेस में बढ़ेगा फिगर ड्यू टू प्रोडक्शन ओवरहेड। सिंस आई एम सिंस production overhead is charging, we are charging production overhead on the work in progress account, so automatically work in progress का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो क्या आप बोल के लिखेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज absorbed कितना? 1,05,000। 150% ऑफ। यहाँ पर अब्जॉर्प्शन रेट आपको बोल दिया है 70,000। कितना हुआ बेटा? 1,05,000। गुड्स कंप्लीटेड, एक सेकंड। गुड्स कंप्लीटेड, वर्किंग प्रोग्रेस का जो गुड्स कंप्लीट हो जाता है मतलब 100% कंप्लीट हो जाता है, वो कहां पर जाएगा? वेयरहाउस में। फिनिश गुड्स में। तो जर्नल क्या होगा बेटा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, यस और नो? यस यस सर। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, गुड्स कंप्लीटेड कितना? 2 लाख। तो हो गया। नेक्स्ट फिनिश गुड्स में डालिए सर टू फिनिश WIPC कितना? 2 लाख। फिनिश गुड्स कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी आता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड बोल दिया है 35,000, अब्सॉर्ब 32,000। तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में लाइए
31/12/2021 to CLC. क्या है CLC? इनकार्ड कितना बेटा? 35,000 by 31/12/2021 by finished goods control. Finished goods control account. Absorb कितना? Absorb 32,000. तो फिनिश गुड्स कंट्रोल में डाल दीजिए 32,000. जर्नल क्या होगा? 2 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, दैट इज absorbed. क्लियर और नॉट? AOHC का मतलब क्लियर होगा? चलिए सर. यस सर क्लियर. AOHC एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. ओके, 32,000. देन और क्या बोला है? सेलिंग ओवरहेड. अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दिया है 2,20,000. तो चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000 मतलब जितना मेरा गुड्स था वहां से 2,20,000 मेरा सेल हुआ है. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना सेल हो रहा है उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट, दैट इज COGS. जितना गुड्स आपका सेल हो रहा है उसका कॉस्ट 2,20,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाइए, वहां पर 2 फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, गुड्स कंट्रोल अकाउंट कितना बेटा? 2,20,000. फाइन. यहां पर और एक आइटम आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आता है. तो 2 CLC. देखो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनका कुछ बोला है और नहीं? यस, 15,000 और absorb 20,000. 15,000 एंड absorb. कहां पर absorb होता है? कहां पर absorb होता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स में. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉस्ट याद करो. कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट कितना? 20,000. 20,000. इमीडिएटली कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दो 2. डेट क्या होगा? डेट तो आपने नहीं दिया है. 31/12/2021. तो 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट absorbed. How much? 20,000. देन पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स अल्टीमेटली कहां पर जाएगा? जहां से प्रॉफिट निकालते हैं, दैट इज कॉस्टिंग PL बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कॉस्टिंग PL अकाउंट कितना? 2,40,000. 2,40,000. बस टोटल देखो टैली कर गया. कॉस्ट ऑफ सेल्स का कोई बैलेंस नहीं रहता है सर. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का भी बैलेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी बैलेंस है. क्या बोला है? क्या बोला है? देखो, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट. तो चलिए ट्रांसफर करते हैं सस्पेंस अकाउंट में. ट्रांसफर करते हैं बाई एडमिनिस्ट्रेशन
overhead, suspense account, under absorption. मतलब अनसेटल, इस साल सेटल नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक उल्टा हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन। डेट नहीं दिया, 31/12/2021। टू selling and distribution, overhead, suspense account, over absorption, कितना सर 5000। ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अदरवाइज कुछ नहीं बोलते तो सर क्या करते, कॉस्टिंग पीएल में डाल सकते थे। यहाँ पर भी 35 टैली हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्लीट। सर फिनिश गुड्स तो कंप्लीट नहीं हुआ है, टोटल करो। 2,72,000 इज क्रेडिट साइड में है, 2,20,000 तो बाई बैलेंस क्या होगा सर 52,000। 52,000। बताइए तो इस बैलेंस का मतलब क्या है? सर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड का। सर क्लोजिंग स्टॉक है सर फिनिश गुड का। कितना 52। डन। ओके, that is a closing stock of finished goods. 52,000 is a balancing figure. Now work in progress का भी देखिए बैलेंस आ रहा है। बोलिए क्या है? डेट 31/12/2021। फिगर बोलो इसका टोटल। 285,000। 2 लाख কথা বলতে পারবে পরে বাবা পাবে না। बोलो नेक्स्ट क्या होगा? बैलेंस, इसका बैलेंस क्या आएगा? आई थिंक 85,000। बाई बैलेंस सीएफ कितना? 85,000। दैट इज अ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लियर और नॉट बेटा? तो जो जो अकाउंट बोला था, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, एनी डाउट? वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके सर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद तो सर कुछ और तो नहीं रहेगा, कोई और अकाउंट? और एक अकाउंट आएगा, दैट इज कॉस्टिंग पीएल। हो गया कंप्लीट। यस सर। तो पिछला क्लास में सर हम लोग तो इसमें जर्नल में किए थे कि उसको हम लोग कॉस्टिंग पीएल में डाले थे। हाँ, तो यहाँ पर भी तब तो बचा। डाले हैं बाय कॉस्टिंग पीएल। ओके सर, ठीक है सर। चलो वो नहीं दिखा सर, वो लोग हो कर। सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रिपेयर कॉस्टिंग पीएल, सिर्फ कॉस्टिंग पीएल प्रिपेयर करना है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 1,50,000। Yes or no? Abnormal loss of material। अच्छा मैंने एक फिगर नहीं दिया था, सॉरी, देना पड़ेगा।
Sales rupees 250,000. Abnormal loss of material to stores ledger control. Ledger control कितना 5,000. Abnormal idle time 3,000. वो भी costing bill. 2 wages control. Control account. 2. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ट्रीट करने के लिए बोला है पीरियड कॉस्ट. अगर प्रोडक्ट कॉस्ट होता है तो फिनिश गुड्स में जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, लेकिन ओवरहेड अगर पीरियड कॉस्ट बोल देता तो स्ट्रेट वे में कॉस्टिंग पीरियड. तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल 12,000. अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवरहेड मतलब कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं. कम खर्चा एब्जॉर्ब किया तो चार्ज कीजिए, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड. ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन. जितना तक मुझे याद है ओवर देख रहा हूं, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्रोडक्ट में ज्यादा डाल दिया है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिगर ज्यादा आ गया है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन. ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा चार्ज कर लिया है तो रिड्यूस करो 2,000. सेल्स बाय सेल्स कितना? सेल्स 250,000. 250,000. देखो एक डिफरेंस आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट को नॉर्मली हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर 79,000. सॉरी CLC 79,000 आएगा सर. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. कॉस्टिंग प्रॉफिट इसका ही नाम है, कॉस्टिंग प्रॉफिट. कितना? 79,000. 29,000. अच्छा वेजेस कंट्रोल. अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे एक चीज लिखना है नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट इज पीरियड कॉस्ट. मतलब ये अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये स्ट्रेट वे में पीरियड कॉस्ट है. अगर आप अंडर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट नहीं लिखे. हाँ वही देख रहा था, प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट नहीं लिखा था 3,000 तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 76,000. सर वो लेके 79 था सर. अच्छा अच्छा सॉरी 252. डन. देखो आप लोग सिस्टम को समझे, जर्नल देना सीखे, लेजर बनाना सीखे और आज आपने एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन से अकाउंट बनाना भी सीख गए. इस 3 क्लास को ये सैटरडे संडे बहुत अच्छी तरह से देखना. मंडे हम लोगों का कॉस्ट लेजर कंट्रोल का जो एग्जाम में आता है उस फुल लेंथ का प्रॉब्लम शुरू होगा. ठीक है, तो हम लोग उस टाइम वो सब देखेंगे. डन. यहां तक कोई क्वेरी? नो सर. यहां तक? No sir. वेरी गुड. Is a very important chapter, not in that perspective. It is important for your higher level studies, very important, because control का mechanism शुरू होता है cost control का concept से. तब अगर cost control का concept, accounts का concept नहीं रहता है एकदम घटिया हो जाएगा.